اب آپ کو بتائیں وہاڑی میں سابق صدر آصف علی زرداری کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ میرا یہ پہلی دفعہ ان کے پاس دورہ ہے اور ویسے تو ہماری دوستی ہے، مگر میں نے کہا تھوڑا ماحول بھی دیکھ لوں، کچھ آپ سے بات کر لوں، کچھ ایشوز آپ سے ڈسکس کر لوں، اس لیے کہ آپ کے لکھنے میں بولنے میں بہت سوال ہے۔ جہاں میں ٹی وی لگاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی اپنی تکلیف برداشت کر رہا ہوتا ہے تو اور کل ہی میں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ حالات کیا ہیں، ہمیں پتہ تھا کہ اکنامکلی میل ڈاؤن ہو رہا ہے، اس کو نہیں پتہ تھا جو چلا گیا، اس کو ریئلائزیشن نہیں تھی، نہ اس کو، ورنہ تو بڑا آسان تھا، 2 مہینے ہم انتظار کرتے پھر الیکشن کراتے، مگر اس نے کچھ کام ایسے کرنے تھے جس سے ہمیں انہیں روکنا تھا، ورنہ اگر وہ کر لیتا تو اور قوم کی بیچ دیتا، ہر جگہ بیچنے کے موڈ میں، اس کی تو عادت ہے جو خریدار ہو، تو یہاں تو دھرتی ہے، یہ ہم تو بیچ نہیں سکتے نہ کسی کو دے سکتے ہیں، ہماری یہ سوچیں ہیں۔ ابھی کل بلاول صاحب کا وہ چل رہا تھا بیان سیلاب زدگان کے حوالے سے کہ اگر، کیونکہ ابھی وہاں پہ وہ ان کی نہیں ہو رہی ہے بحالی، کہ اگر وعدے پورے نہیں ہوتے ہیں تو ہم اپنی وزارتوں کو جو ہے وہ چھوڑنے کا سوچ سکتے ہیں، اس پہ کچھ تحفظات بتایا انہوں نے، ان کا جو ابھی تک نہیں تھا وہ بلال صاحب جوان آدمی ہے، اس کو غصہ بڑی جلدی آ جاتا ہے، ہم غصہ پینے کے 67 ایئر سے عادی ہیں، وہ آکسفورڈ ریٹرن ہے، وہ ایسی چیزوں میں بلیو نہیں کرتا، وہ کہتا ہے مجھے آپ لوگ نے وعدہ کیا تھا پیسے کدھر ہے، یا تو کرتے نہیں، اب کیا ہے تو آپ نے دیے کہ نہیں۔ اچھا صدر صاحب، اس میں یہ ملکی حالات اس وقت جتنے گمبھیر ہیں، ان حالات میں قومی قیادت کو مل بیٹھنا چاہیے، اور آپ آصف زرداری صاحب کے بارے میں مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے پاکستانی سیاست میں، تو یہ عمران خان پہ یہ مفاہمت کے سلسلے میں جادو کیوں نہیں چل رہا ہے آصف زرداری صاحب کا؟ سر عرض ہے کہ بلکہ آپ کی طرف سے انکار نظر آ رہا ہے۔ وہ عرض یہ ہے کہ پولیٹیشین سے تو بات ہو سکتی ہے، سیاسی لوگوں سے تو بات ہو سکتی ہے، ہر کسی سے، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہو، پولیٹیکل فیملیز ہوں، پولیٹیکل پارٹیز ہوں، ان سے بات ہو سکتی ہے۔ یہ جو ان ایوریج پولیٹیکل پارٹی ہے، اس سے بات کیا کروں میں؟ یہ تو خود کہتا ہے کہ میں یو ٹرن کرتا ہوں، یو ٹرن کرنا میری ایک خصلت ہے۔ اب یو ٹرن سیاسی آدمی ایک دفعہ زبان دے دی تو یو ٹرن کیسے ہوگی؟ یہ کہتا ہے نہیں، یو ٹرن از فائن، اگر ہٹلر کرتا تو یہ ہوتا اور نیپولین کرتا تو وہ ہوتا۔ جس نے صرف ایک کتاب پڑھی ہوتی ہے نا نیپولین پہ، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، جس نے ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے ہٹلر پہ، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اگر پوری وار کو دیکھیں تو اتنی دور ہٹلر نکل آیا تھا اور رشینز نے اس کو ٹریپ کیا، نیپولین کو بھی رشین نے ٹریپ کیا انٹو در ویدر۔ یہ تھوڑی ہے کہ اگر وہاں سے یو ٹرن لے لیتا تو اس کو چھوڑ دیتے۔ اچھا صدر صاحب، یہ بتائیں کہ آپ جیسے کہ مقامت کے بادشاہ کو کہتے ہیں کہ صدر زرداری ایک پہ بھاری، تو یہ جو ساری سچویشن جو آپ کی پی ڈی ایم میں جماعتیں چل رہی ہیں عمران خان کی خاص گرفتاری پر، تو یہ اندر سے بات بھی آ رہی ہے، اوپر بھی ہے کہ صدر زرداری صاحب نے چاہتے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے، اس میں کیا ہے؟ سر میں کسی اور کے ایشو میں گرفتار کرنا نہ کرنا وہ انٹیریئر منسٹر کا اپنا ڈومین ہے، اس میں کیوں انٹرفیئر کروں گا؟ اور مجھ سے پوچھیں گے بھی کیوں؟ مجھ سے تو پوچھیں گے نہیں، کرنا ہوگا جو جا کے کریں گے۔ سر ابھی جو الیکشن اناؤنس کیے گئے، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ وقت پر ہوں گے جو ڈیٹ دی گئی، اور کیا اس میں جو پی ڈی ایم ہے وہ اپنے متفقہ امیدوار لائے گی، یا نون لیگ اور پیپلز پارٹی الگ الگ امیدوار کھڑے کریں گے؟ بیٹا ابھی تو الیکشن کا ماحول بنے گا، اس کے بعد یہ بات سوچیں۔ اس میں ایک جو آپ کا معاہدہ ہوا تھا پی ایم ایل این سے، نواز شریف سے بلاول صاحب گئے تھے لندن میں، اس میں جو تھا کہ پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی اور نون لیگ جو ہے اس پہ وہ نہیں کریں گے، لیکن مریم صاحبہ نے جو خطاب کیا کہ ملتان میں خاص طور پہ جس دن ورکرز کنونشن تھا وہاں،
उसमें कुछ ऐसी बातें थी कि शायद वो जो मुआहदा हुआ था, वो जो बातें हुई थी, वो ऐसा अवाम में गर्दिश कर रहा है कि नून लीग शायद उस पर ना चले। डिपेंड करता है ना सर्कमस्टांसेस पे पॉलिटिक्स की जाती है। आर्ट ऑफ द पॉसिबल, नॉट द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल। तो क्या आप समझते हैं कि इंतखाबात वक्त पर होंगे? मेरी सोच तो यही कहती है कि वक्त पे होंगे। सर बिलावल साहब ने कल अपने बयान में ये मरदमशुमारी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। जी हाँ, उस पर सिंध को इतराज़ है। सर इसमें दो सूबों में इंतखाबात की बात हुई है। 2 सूबों में इंतखाबात की बात पे कल मौलाना ने एक बयान जारी किया है कि ये एक जो अथॉरिटी है वो उसको इनिशिएट नहीं कर रही, 2 मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं, गवर्नर और सदर साहब। तो हम इसको चाहते हैं कि ये मौखर हो। तो पीपल्स पार्टी का इस पीडीएम के किसी स्टांस पे क्या? देखिए ना, पीडीएम के स्टांस अपने हैं, हमारा अपना है, पर बाय एंड लार्ज हम उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी चूंकि वो मेजॉरिटी पार्टी है तो उनके साथ चलते हैं। आपने जब पीडीएम बनने जा रहा था तो आप उस वक्त भी जो था वो पीपल्स पार्टी नॉट अ पार्ट ऑफ पीडीएम, पीपल्स पार्टी पहले भी लगा, लेकिन पीडीएम की गवर्नमेंट बन गई, पीपल्स पार्टी उसमें शामिल जरूर है। क्या पीपल्स पार्टी अब पीडीएम का हिस्सा है? पीडीएम का हिस्सा नहीं है, मगर गवर्नेंस का हिस्सा है, वो तो है, गवर्नमेंट का हिस्सा है। हो गया। इसलिए फारूक नाइक ने जाके दरखास्त डाली सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हमें भी सुना जाए, हमें भी नोटिस दिया जाए। जरदारी साहब, एक तरफ ना मुल्क के बड़े भाग सियासतदान एक तरफ है, जबकि दूसरी तरफ वो बंदा है जिसे सियासी लोग सियासतदान भी नहीं कहते। फिर क्या वजह है वो किसी के काबू में नहीं आ रहा, और ना पब्लिकली ना इदारों में? देखे ना, सियासत में इंसान को जफाकशी करनी पड़ती है। मखदूम साहब ने तकरीबन 6 साल जेल काटी है। हाँ, ज्यादा जेल मैनुअल के मुताबिक तो मेरा बहुत ज्यादा आपका बड़ा बच्चा भाई तो वो सीजन हुए ना, 5 साल में सीजन हुए, इसलिए मैंने उनको चूज किया प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, कि पता था कि भाई सीजन है। और तब भी ये ज्यादा ठंडे होते थे, मैं कभी कभी पटरी से उतर जाता था, तो फिर ये मुझे रोकते थे कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना है। इलेक्शन के हवाले से दोस्तों ने सवाल किया, पीडीएम से हटके पीपल्स पार्टी की अपनी जो है, आपकी राय में जो इलेक्शन है वो मुल्क में एक साथ होने चाहिए या जैसे ही अनाउंस हुए ऐसे ही होने चाहिए? आपकी पार्टी की राय के तौर पे आपका क्या? सर, पार्टी के इस बात पे पार्टी में डिबेट अभी नहीं हुई है, जब होगी तो मैं आपको बता दूंगा। सर, हमें पता चला कि आप बिहाड़ी से एमएनए का इलेक्शन लड़ रहे हैं। सर, अगर आप दावत देंगे तो मुझे क्या इतराज? तो मुझे तो कोई इतराज। तो सरदार साहब ये बताएंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट और जो अदलिया है वो इमरान खान को ज्यादा रिलीफ दे रही है, और जबकि आपके तमाम केसेस जो पीपल्स पार्टी के, पीडीएम के, नून के जितने भी कायदीन थे वो कोई 8 माह, कोई 2 साल, कोई 5 साल जेल काट के रहा बाहर आया है, और आपने चीखे भी मारी है, 2-2 घंटे पे चीखे मारे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि अदलिया में जो आपके साथ इंसाफ हो रहा है जो इस वक्त हो रहा है? जिस तरह पूरी कौम को ठीक करना है, संभालना है, इकोनॉमी को संभालना है, मिलिट्री माइंडसेट को संभालना है, इसी तरह मेरा ख्याल है अदलिया को भी संभालना है, उनसे भी बात करनी है, उनसे भी गुफ्तगू करनी है। इसलिए है तो हमसे ही, वो भी हमारे में से गए हुए लोग हैं, पहले लॉयर थे, अब जज बन गए। अभी कल ना ये बात हो रही थी, सवाल तो उठते रहेंगे कि जितने इस वक्त पॉलिटिशियन थे ना जी हमारे मुल्क में, जैसे आपने गिलानी साहब की बात की है, वो तो बहुत दफ़ा जेल गए हैं, आपकी जो जेल है वो भी बहुत ज़्यादा है, और शायद यही वजह है कि ये 70-75 साल वाले भी जवान नजर आते हैं और 67 साल का जरदारी जो है बूढ़ा नजर आता है। शायद ये जेल नहीं करती है? बहरहाल ये तो मेरी नज़र में ये कोरोना ही कर दिया। सर, इसमें इस वक्त पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी हमें पिछले कई सालों से जो है वो वीक नजर आई है। आपका ये दौरा क्या इसको मुस्तहकम करने के लिए पंजाब के अंदर है या इसका कोई दूसरा सिनेरियो भी है? फिर आपने कहा ना कि एमएनए के लिए व्याड़ी से खड़े हो जाओ, तो अब व्याड़ी को देखूं तो सही, कल को व्याड़ी वाले बोलेंगे क्या मसला है, क्या गम है, क्या नहीं है। पंजाब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है, जिला व्याड़ी में भी
विहाड़ी में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। उनका कहना था जिला विहाड़ी का पहला दौरा है, ज़ाती ताल्लुकात पहले हैं, सियासी ताल्लुकात में इजाफा कर रहे हैं, सियासी जमातों और सियासतदानों से बातचीत हो सकती है। इमरान खान गैर सियासी शख्स है, इससे बात नहीं कर सकते। उनका मजीद कहना था पीडीएम के साथ मिलकर चल रहे हैं लेकिन पीडीएम का हिस्सा नहीं है। राजनपुर का इलेक्शन पीटीआई महंगाई की वजह से जीती, हमारी हुकूमत में महंगाई नहीं थी, हमारी हुकूमत में मुलाजमीन जजेस की तनख्वाह में इजाफा किया गया। डिजिटल मरदमशुमारी पर सिंध को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपको बता रहे हैं कि जिला विहाड़ी का पहला दौरा था साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का। उनका कहना था ज़ाती ताल्लुकात पहले हैं, सियासी ताल्लुकात में इजाफा कर रहे हैं, सियासी जमातों और सियासतदानों से बातचीत हो सकती है। इमरान खान गैर सियासी शख्स है, इससे बात नहीं कर सकते। पीडीएम के साथ मिलकर चल रहे हैं लेकिन पीडीएम का हिस्सा नहीं है। आपको बताएं मुल्तान में सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। 24 घंटों में सोने की कीमत में 1500 रुपए की कमी। 24 के रात सोना 1,97,000 रुपए फी तोला हो गया। 22 के रात सोना 1,80,583 रुपए फी तोला हो गया है। 24 के रात सोना 16,899 रुपए फी ग्राम फरोख्त होने लगा। 22 के रात सोना 15,482 रुपए फी ग्राम हो गया है। 22 के रात सोना 15,482 रुपए फी ग्राम हो गया है। आपको बता रहे हैं मुल्तान में सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। 24 घंटों में सोने की कीमत में 1500 रुपए की कमी वाक़या हुई। 24 के रात सोना 1,97,000 रुपए फी तोला हो गया। 22 के रात सोना 1,80,583 रुपए फी तोला हो गया। 24 के रात सोना 16,899 रुपए फी ग्राम फरोख्त होने लगा। 22 के रात सोना 15,482 रुपए फी ग्राम हो गया। सखी सफर और कोहे सुलेमान में मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी का सिलसिला जारी है। ज़ालाबारी के बायस गंदम की फसल को नुकसान का खदशा है। कोहे सुलेमान पर बारिश से बरसाती नदी नालों के आने का भी इम्कान है। आपको बता रहे हैं सखी सरवर और कोहे सुलेमान में मूसलाधार बारिश और जालाबारी का सिलसिला जारी है। जालाबारी के बायस गंदम की फसल को नुकसान का खदशा, कोहे सुलेमान पर बारिश से बरसाती नदी नालों के आने का भी इम्कान है। मिंचनाबाद में मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से THQ अस्पताल के लॉन में अल करीम फ्री दस्तरखान का आगाज कर दिया गया। सदर बार मियां राशिद अहमद वटू ने रिबन काटकर अल करीम फ्री दस्तरखान का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमाओं समेत शहरियों, वकला, सहाफियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इसी हवाले से शहरियों का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। मिंचनाबाद में ऐसी मिसाल पहले नहीं मिलती कि किसी दोस्त ने, एक इदारे ने, मरकजी मुस्लिम लीग ने ये एक आज इफ्ताह मेरे हाथों से करवाया है। तो एक तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा। दूसरा ये ऐसा मुबारक काम है कि ये हर बंदे की नसीब में नहीं होता। अब जो दोस्त अहबाब इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं बिलाशुबा वो जन्नती लोग हैं, दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। और उसमें मैं जो यहाँ पे लोग हैं जो इस काबिल हैं कि वो सपोर्ट कर सकते हैं, इस नेक काम में अपना हिस्सा डाल सकते हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा वो भी इस नेक काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मैं भी इंशाल्लाह अपने औकात से बढ़कर हिस्सा डालूँगा। यहाँ मिंचनाबाद बाहर में तकरीबन 200-400-500 लोग तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे आते हैं। गरीब लोग होते हैं, वो किराया मुश्किल से भर के आते हैं और खाना तो दूर की बात, वो यहाँ पे पानी भी नहीं पी सकते जैसे आजकल महंगाई है। और साथ ही हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में भी तकरीबन 500-1000 बंदा रोज़ाना की बुनियाद पे आता है। और जो मुसाफिर है, मरीज़ है, उनको खाना खिलाने की फजीलत भी ज़्यादा है। तो जो अहबाब ने इनकी यहाँ पे बुनियाद रखी, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंशाल्लाह मैं भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लूँगा। हमारे ज़िलाई अमीर साहब हैं भाई अबीर रमज़ा साहब, और हमारे तहसील के अमीर हैं, वो भी माशाल्लाह मुंतज़िम हैं यहाँ के, तो उनके साथ हमारी जश्न बहारा खुशाब के तीसरे रोज नेज़ाबाजी का इनेकाद किया गया जिसमें मुख्तलिफ टेंट क्लबों ने शिरकत की। चौधरी अब्दुल मनान, चौधरी हशाम क्लब ने भी खसूसी शिरकत की। इस हवाले से उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, हमारा एक सकाफती खेल है, हमारा एक कल्चर है और ऐसी गेमें होती रहनी चाहिए। और माशाल्लाह हमारे डिस्ट्रिक्ट खुशाब में बड़ा अच्छा जश्न बहारा का इनेकाद किया गया है जिसके अच्छे इंतजाम किए गए हैं और लोगों के लिए एक तफरीह का एक अच्छा मौका है। तो हम अपनी गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि ऐसे मेले इनेकाद होने चाहिए और हमारे इस कल्चर को इसी हिम्मत से हमें बाजी हमारा एक सकाफती खेल है, हमारा एक कल्चर है और ऐसी गेमें होती रहनी चाहिए। और माशाल्लाह हमारे डिस्ट्रिक्ट खुशाब में बड़ा अच्छा जश्न बहारा का इनेकाद किया गया है जिसके अच्छे इंतजाम किए गए हैं और लोगों के लिए एक तफरीह का एक अच्छा मौका है।
تو ہم اپنی گورنمنٹ سے اپیل کریں گے کہ ایسے میلے انعقاد ہونے چاہیے اور ہمارے اس کلچر کو اسی ہمت سے ہمیں سے زندہ رکھیں گے۔ بازی ہمارا ایک ثقافتی کھیل ہے، ہمارا ایک کلچر ہے اور ایسی گیمیں ہوتی رہنی چاہیے، اور ماشاءاللہ ہمارے ڈسٹرکٹ خوشاب میں بڑا اچھا جشن بارہ کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کے اچھے انتظامات کیے گئے ہیں اور لوگوں کے لیے ایک تفریح کا ایک اچھا موقع ہے۔ تو ہم اپنی گورنمنٹ سے اپیل کریں گے کہ ایسے میلے انعقاد ہونے چاہیے اور ہمارے اس کلچر کو اسی ہمت سے ہمیں سرگودا مرکز سینٹر کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہے۔ RPO سرگودا شارق کمال نے سینٹر کا افتتاح کیا۔ تحفظ سینٹر سے نشے کے عادی بچوں کو بحالی سینٹر تک پہنچایا جائے گا۔ کمیونٹی کے افراد کے لیے خصوصی کاؤنٹر بنایا گیا ہے کہ بے سہارا خواتین کو سینٹر کے ذریعے تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ آئندہ 3 روز میں ریجن کے باقی اضلاع میں بھی تحفظ سینٹر قائم ہو جائیں گے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ تمام وہ سہولیات جو کہ ایک صحت مند شہری کو پولیس کے تھانے میں مہیا ہوتی ہیں، جس میں کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے، جس میں لائسنس بنانا ہے، جس میں ان کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہو گئی بھی ہے اس کا ازالہ کرنا ہے، FIR کی رجسٹریشن ہے، ان کی تفتیش کے تمام مراحل، وہ تمام سہولیات جو کہ کسی بھی دوسرے شہری کو اویلیبل ہوتی ہیں، اس کے لیے یہاں پر ایک تحفظ سینٹر کے ذریعے ان سیگمنٹس آف دا سوسائٹی جو کہ مارجنلائز سیگمنٹ ہیں ان کے لیے ایک خاص جگہ، کیونکہ وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے تھانے میں جانے سے، کیونکہ وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے اپنی بات کو سمجھانے میں، جس میں ہمارے ڈیف اینڈ ڈمبس جو ہیں وہ بات چونکہ کر نہیں سکتے، بات سمجھ نہیں سکتے، تو وہ مشکل محسوس کرتے ہیں تھانے میں جا کے اپنی بات کرنے میں۔ ان کے لیے خاص یہ ایک تحفظ سینٹر کا جو عمل وہ مکمل کیا گیا ہے، آج اس کی اوپننگ کر دی گئی ہے، باقی تینوں ڈسٹرکٹس کے اندر بھی اس کی اوپننگ اگلے 3 دنوں میں کر دی جائے گی۔ مقصد اس کا یہی ہے کہ ہمارے وہ مارجنلائز سیگمنٹ جس میں نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔